अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we were discussing about the unit number 2, uh, surrounding by trash. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. That what is trash or garbage? The waste humans generate waste has been uh, detrimental to our environment for quite some time now. Humans are generating too much trash and cannot deal with it in a sustainable way. Waste that is not biodegradable and cannot be properly be recycled is filling our oceans and landfills. Let's take plastic as an example. A recent study found that of the 6.3 billion metric tons of plastic waste that has been produced, only 9% of that plastic waste had been recycled. Find out that more about plastic pollution and how you can help reduce your own waste. In 2017, for instance, the Environmental Protection Agency calculated that the total generation of municipal solid waste in the United States just that year was 267.8 million ton. The way we dispose of waste is troubling. What is worse, in this decade alone, it would seem that waste disposal has become more careless. What we have failed to do is to put into action that ideas we believe will help us uh, mitigate to adapt to climate change. Case in point, the trash that is dumped in landfill release methane gas. Taken one step further, open landfills were found to represent 91% of all landfills' methane emission. The burning of large open piles of trash in various parts of the world emit dangerous level of carbon dioxide, a greenhouse gas that is heating up our planet. Researchers have calculated that approximately 40% of the world's trash is burned in this fashion, posing large-scale risk to both our atmosphere and the people that live near these burning sites. So student, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First, reading for comprehension means vocabulary. वोकेबलरी के अंदर बेटा डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हमने मीनिंग्स को फाइंड करना है और फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वन, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना या स्पुर्द करना। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो कुछ ऐसे बन सकता है, आई डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट। सेकेंड वन, रोटन यानी कि गला सड़ा। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो बनेगा, वी शुड नॉट ईट रोटन फ्रूट। हमें गले सड़े फल नहीं खाने चाहिए। वी शुड नॉट ईट रोटन फ्रूट। नेक्स्ट वन, सिगरेट। सिगरेट को उर्दू में इसका मानी भी सिगरेट ही है। एंड द सेंटेंस इज, द यूज़ ऑफ सिगरेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिगरेट का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट्स, इस्तेमाल शुदा टुकड़े या सिगरेट के हिस्से। यूजुअली द स्मोकर्स थ्रो द बट्स इन द पार्क। आमतौर पर सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं उसके टुकड़ों को पार्कों में फेंक देते हैं।
मैं रिपीट कर रही हूँ, यूजली द स्मोकर्स थ्रो द बट्स इन द पार्क्स। गिल्टी, नेक्स्ट वन गिल्टी मतलब मुजरिम या कसूरवार, एंड द सेंटेंस इज आफ्टर डूइंग रॉन्ग ही वॉज फीलिंग गिल्टी। गलत काम करने के बाद वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। नेक्स्ट वन कंसिक्वेंसेस, नताइज या नतीजा। सो द सेंटेंस इज यू विल फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एब्सेंस फ्रॉम द क्लासरूम। You will face the consequences of your absence from the classroom। ठीक है, क्या आप कमरा जमात से गैर हाजिरी के नताइज का सामना करेंगे, एक तरह से धमकी दी जा रही है। नेक्स्ट वन, मेरा बॉक्स के अंदर बताया गया कि फ़न एक वर्ड है, हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, उसके मुख्तलिफ मतलब होते हैं, लाइक प्लेयर, इंजॉयमेंट। ठीक है, ये उसी के मानी कह लें या सिनोनिम कह लें। वी कैन फाइंड सिमिलर मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन द थ्रेशर। वो कह रहे हैं कि हम थ्रेशर के अंदर एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी या सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वर्ड ट्रैश का थ्रेशर में से सिनोनिम्स ढूंढें। तो अगर हम इसके मीनिंग्स देखें बेटा तो या सिनोनिम देखें तो ट्रैश का मीनिंग में आता है वेस्ट, गार्बेज, लिटरिंग, रबिश। ठीक है, वेस्ट, गार्बेज, लिटरिंग एंड रबिश, ये सारे के सारे इसके ट्रैश के सिनोनिम में आते हैं। नेक्स्ट वन, रीरीड पैराग्राफ 2 of the lesson and find how the writer supports the main idea। फर्स्ट वन डेफिनेशन, ठीक है, कि डेफिनेशन उसने कैसे बताई है, उसके बाद एविडेंसेस और फिर एग्जांपल्स कैसे दी गई हैं। तो बेटा जब हम देखते हैं उसके पैराग्राफ को, जब हमने पढ़ा तो इसके अंदर से हमें पता चला कि जो राइटर है वो एविडेंसेस के ज़रिए से बात कर रहा है। ठीक है, उसने पैराग्राफ 2 के अंदर किस चीज़ की बात की है, एविडेंसेस की, सबूतों के ज़रिए से बात की है। नेक्स्ट वन, बी क्वेश्चन also related to the comprehension. In paragraph 3, 4 and 5, the writer is talking about the causes, effects and solution of littering. Can you identify the writer, cause, effect and solution? बेटा हमने पिछली वीडियो के अंदर जो ट्रांसलेशन पढ़ी उसमें पैराग्राफ 3, 4 और 5 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि राइटर ने जो कूड़ा क्रिकेट है उसकी वजूहात, उसके असरात और उनके हल के बारे में बात की है। तो हमें बताना है कि उसने किस पैराग्राफ में क्या बात की है। कॉज 1, कॉज 2, 3, 4, फिर उनके इफ़ेक्ट्स हैं और फिर सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि कॉज 1 जो है अगर उसने क्या बात की है, तो कॉज 1 के अंदर बेटा उसने बात की कि पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी अबाउट लिटरिंग इन एरियाज वेयर गार्बेज इज़ ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड। पहली वजह उसने कूड़ा क्रिकेट फैलने की ये बयान की कि लोग आम तौर पर उन मकामात पर कूड़ा फेंक देते हैं, फेंकने में अपने आप को कसूरवार नहीं समझते जहाँ पहले ही कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ हो। पहला तो माहौल के अंदर गंदगी की ये वजह है। सेकंड कॉज क्या होगा, सेकंड कॉज उसने कहा है कि पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन। दूसरी वजह उसने बयान की कि लोग समझते हैं कि कूड़ा क्रिकेट फैलाना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सफाई करने वाले या खाकरोबों का फ़र्ज़ है कि वो इलाके को साफ़ रखें। ठीक है, थर्ड कॉज क्या उसने बयान किया या वजह क्या बयान की है, something that since they are visiting for a few hours only it does not matter what condition they leave the place in। तीसरी वजह उसने बयान की कि कुछ लोग समझते हैं चूंकि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए तफरी कर रहे हैं तो ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो जगह को किस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, कॉज नंबर 4, others feel too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it। वजह नंबर 4 ये है कि दूसरे लोग कुछ लोग इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए उस तक चल कर भी नहीं जा सकते। अब इन चारों वजूहात या इन चारों कॉजेज़ के असरात क्या होते हैं। सो फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होगा कि ट्रैश डेट इज़ लेफ्ट अराउंड अट्रैक्ट जर्म, फ्लाइज, मस्कीटो एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ नंबर 4 में बात की थी कि कूड़ा जिसे हम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करते हैं या छोड़ देते हैं उनके ऊपर जरासीम, मक्खियाँ और मच्छर और कीड़े मकोड़े जो हैं आ सकते हैं। इफ़ेक्ट नंबर 2 क्या होगा, rotten fruits and decaying food stuff give our poisonous and bad smell which are extremely harmful for our health।
अगला असर ये होगा कि गले सड़े हुए फल और ख़राब होती हुई खाने की जो चीज़ें हैं वो हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डालेंगी और हमारी सेहत जो है उससे ख़राब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन कि अब इन दोनों असरात का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो हल बेटा इसका ये है, द ट्रूथ इज़ डैट इफ़ एवरीवन मेक्स अ लिटिल effort to find a trash bin or just hold on to it they till they can deposit it off properly in garbage bin। जो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि सच ये है कि अगर कोई कूड़ेदान को ढूंढने की मामूली सी कोशिश करे या महज उसे पकड़े रखें कि जब तक वो उसे मुनासिब अंदाज में कूड़ेदानों में ना फेंक दे, तो ये उसका हल है कि हम आसानी से अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा सी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनके आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरिंग। सो द आंसर इज़ लिटरिंग मीन्स टू लीव थिंग्स इन अ प्लेस मेकिंग इट टू लुक अनटाइडी। गंदगी फैलाने का मतलब यह है कि एक जगह पर चीज़ें छोड़ जाना जिससे ये जगह गंदी मालूम हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस। लोग जो है अवामी जगहों को गंदा करने के बारे में क्या जवाब पेश करते हैं या क्या एक्सक्यूज़ देते हैं। सो द आंसर इज़ द एक्सक्यूज़ which people give is that they are not responsible for the untidy look of places they visit, as it is the duty of sweepers to keep them clean। वो लोग ये जवाब पेश करते हैं कि वो उन जगहों की गंदी सूरत हाल के ज़िम्मेदार नहीं हैं जहां वो सियाहत करते हैं, क्योंकि उन्हें साफ रखना सिर्फ और सिर्फ स्वीपर्स का या खाकरोबों का फ़र्ज़ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिजीज़ कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग। कूड़ा करकट की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सो द आंसर इज़ सच डिजीज़ एज आर कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मलेरिया कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग। तो इसकी वजह से हैज़ा, इन्फ्लुएंजा, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू आर गुड एंड बैड हैबिट अफेक्ट आर इन्वायरमेंट। हमारी अच्छी और बुरी आदत हमारे माहौल को कैसे मुतासर करती हैं। सो द आंसर इज़ इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट वेयर एज पीपल हैविंग बैड हैबिट्स do not mind staying in a dirty environment, people having good habits try their best to keep their environment clean and hygienic, so our good and bad habits affect our environment greatly। अक्सर मुशाहिदा किया जाता है कि बुरी आदत रखने वाले लोग एक गंदे माहौल में काम करना नापसंद नहीं करते या आसानी से रह सकते हैं, जबकि अच्छी आदत वाले लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनका माहौल साफ़ सुथरा और सेहत के असूलों के मुताबिक रहे। इसी तरह हमारी अच्छी और बुरी आदत जो है वो हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। बेटा देयर इज़ अ ग्रामर पोर्शन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशंस दी गई हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, people, etc., which we can count easily. For example, books, sisters, horses, etc. And uncountable noun ऐसे noun होते हैं name of thing which we cannot count like milk, oil and sugar, etc. Countable noun या काबिल शुमार इसम वो जगह होती हैं जिन या वो लोग होते हैं जिनको हम आसानी से गिनती कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, जैसे कि किताबें, बहनें या घोड़ा वगैरह। और नाकाबिल शुमार या कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे कि दूध, तेल, चीनी। ठीक है, नेक्स्ट ए क्वेश्चन, पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन। के चैप्टर में से जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको चूज़ करें या लिखें। तो बेटा बहुत से आपको मिल जाएंगे, जैसा कि फ़न, वर्क, ट्रैश, रबिश, लिटरिंग, हैबिट, एविडेंस, जूस, अपीयरेंस, एनवायरनमेंट, प्लेस, एक्सेट्रा। ये सारे वो नाउन्स हैं या वो मैंने नाम लिए हैं जो कि क्या है, अनकाउंटेबल हैं। बी क्वेश्चन, कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज़। यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, उनकी मदद से हमने इनको पूरा करना है। ठीक है, फर्स्ट वन, बीज कलेक्ट इट। मक्खियाँ शहद की जो हैं वो इकट्ठा करती हैं। क्या इकट्ठा करती हैं, वो एच से स्टार्ट होता है, तो हनी इकट्ठा करती हैं, HONEY, हनी। ठीक है, सेकंड, वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड। हम इस चीज़ को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ F से स्टार्ट होती है, तो हम आटे को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आटा जो है F यानी फ्लोर
से स्टार्ट होता है, LOUR, ठीक है, कंप्लीट हो गए वर्ड्स। 3, दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि डॉक्टर से हमें बचाता है या दूर रखता है, और ये स्टार्ट होता है ए से। तो बेटा आपने पहले भी शायद सुना हो कि एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल खाने से हम दिन के अंदर एक एप्पल खाने से हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, यानी कि बीमारियों से बच सकते हैं। तो एप्पल, APPLE, एप्पल। 4th वन, वी ड्रिंक टी इन दैम, ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो किसके अंदर चाय पीते हैं, कप्स के अंदर चाय पीते हैं, ऑब्वियसली CUPS, कप्स। 5th वन, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, हम इसको पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं। हम किसको पीते हैं बेटा, हम पानी को पीते हैं, और पानी W से यानी वाटर, W से स्टार्ट होता है, WATER, वाटर। 6th वन, वी यूज़ दैम टू राइट विथ, हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। किसको, पेन को इस्तेमाल करते हैं। तो P से स्टार्ट होता है, PEN और S, पेन। 7, वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, हम इसको मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम किस चीज़ को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, शुगर को इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर का स्पेलिंग क्या है, SUGAR, शुगर। 8th वन, वी रीड दैम, हम इनको पढ़ते हैं। हम किन्हें पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ जो कि B से स्टार्ट होती हो, बुक को पढ़ते हैं, BOOKS, बुक्स। 9 वन, चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, बच्चे जो है इसके ज़रिए से साहिल पर खेलते हैं। किसके ज़रिए खेलते हैं, S से स्टार्ट होता है वो, तो सैंड यानी कि रेत से खेलते हैं, SAND, सैंड। 10th, इट टेल्स अस द टाइम, एक ऐसी चीज़ जो कि हमें टाइम बताती है, और C से स्टार्ट होती है, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन C, नाउ क्लासीफाई द अबव नाउन इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेटा इस एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स बनाए हैं, इन तमाम वर्ड्स को यूज़ करते हुए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन डिफ्रेंशिएट करने हैं। जैसा कि फर्स्ट वन जो था हमारा, वो क्या था, हनी। हनी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आता है हनी, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। फ्लोर, फ्लोर भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, नहीं कर सकते हम उसको काउंट। एप्पल काउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। फिर है कप, कप भी काउंटेबल नाउन में आएगा। फिर आता है वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेन, पेन काउंटेबल नाउन में आएगा। शुगर अनकाउंटेबल में आएगा। बुक काउंटेबल नाउन। सैंड अनकाउंटेबल नाउन। क्लॉक काउंटेबल नाउन, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन D, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए और एन वेयर नेसेसरी, ए और एन का इस्तेमाल करना है जहाँ पर ज़रूरत हो। फर्स्ट वन, डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पर आ आएगा। डैश फूड इज़ इन द कबर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ए या एन आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। या दा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें दा का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसको हम बगैर कुछ लिखे छोड़ देंगे। थर्ड वन, डैश पेपर इज़ इन माई बैग, तो यहाँ पर आ पेपर आएगा, अ पेपर इज़ इन माई बैग। फोर्थ वन, डैश इंक पॉट इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर देखें बेटा, आई जो है वॉवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे, AN। फिफ्थ वन, डैश बॉयज इन द कार, बॉय, अ बॉय इज इन द कार। सिक्स वन, डैश एप्पल इज इन द प्लेट, तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे, एन एप्पल इज इन द प्लेट। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन जिनको हमने देखा, ये क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट ना कर सकें उनसे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट वन है बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनके अंदर हमने यूज़ करना है कि मतलब कि चेक करना है कि ऑलवेज आएगा, यूजुअली, ऑफन, सम टाइम या नेवर। स्टेटमेंट को पढ़ के हमने इसका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट वन, आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग, मैं क्या करता हूँ,
हमेशा एक प्लास्टिक बैग रखता हूँ, कभी कभार रखता हूँ, अमूमन रखता हूँ या कभी नहीं रखता। तो इसमें से आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज़, ठीक है, हमेशा अपने साथ प्लास्टिक बैग रखता हूँ कूड़ा करकट से बचने के लिए। आई स्विच लाइट ऑफ व्हेन आई लीव अ रूम, मैं जब कमरे से जाता हूँ तो हमेशा लाइट को ऑफ करता हूँ। हमेशा करता हूँ, यूजुअली, आमतौर पर, अक्सर, कभी कभार या कभी नहीं। तो आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। तो मैं तो ऑलवेज़ करती हूँ, हमेशा जब भी कमरे को छोड़ूँ तो मोस्टली जो है ये बंद करती हूँ। थर्ड वन, आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डोंट नीड इट, जब मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, कंप्यूटर या टीवी को। हाँ जी बिल्कुल, ऑलवेज़, हमेशा बंद कर देता हूँ जब इसकी ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ वन, आई क्लीन माई टीथ बाई पुटिंग वाटर इन टू अ ग्लास, किसी भी ग्लास के अंदर पानी डालने से पहले, क्या मतलब कि पीने से पहले अपने दांत साफ़ करते हैं। तो ये ऑलवेज़ लगा सकते हैं, यूजुअली जो आपका दिल करे या जो आपकी हैबिट है उसके मुताबिक आप इनको फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट होती है या एक्ट देन दैट आर हैबिचुअल, एक ऐसा काम जो कि आमतौर पर किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर बात करते हुए अपनी डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। नीचे एफ क्वेश्चन है, अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के अंदर से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो अगर हम इसको पढ़ें स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है, तो यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है इसके अंदर से यहाँ पर लीव जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा थिंक ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इज भी कर रहा है। इसके अलावा गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिएट भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ठीक है ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट वन जी, टिक द राइट ऑप्शन, हमने इसमें से राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो दे नेवर डैश टू सी अस, दे नेवर come to see us, I always clean my teeth twice a day, this train often arrives late। ठीक है, our team never lose, Salma never visits the library। नेक्स्ट है बेटा पंक्चुएशन के कोमा जो है इज़ यूज टू सेपरेट आइटम इन द लिस्ट, द लास्ट ऑफ विच इज़ यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड। हाँ जी, कोमा का भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दो जुमलों के दरमियान, दो लफ्ज़ों या जुमलों के दरमियान में उनको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ किया जाता है। देयर इज़ अ क्वेश्चन आई रिलेटेड टू द पंक्चुएशन, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कोमास वेयर नीडेड, जहाँ पर कोमा की ज़रूरत है वहाँ पर कोमा लगाएं और सेंटेंसेस को रीराइट करें। फर्स्ट वन, इंडिया के बाद कोमा आएगा, पाकिस्तान के बाद कोमा आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर दिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर और एशियन कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा हम हेयर आर रोजेज़, रोजेज़ के बाद आएगा ऑर्चिड्स, सनफ्लावर्स एंड लिलीज इन द बास्केट। ठीक है, रोजेज़, ऑर्चिड्स और सनफ्लावर, इनको हमने कोमा के ज़रिए सेपरेट किया। मिसेस खान बाय एप्पल, ऑरेंजेस, पीचेस एंड वाटरमेलन, तो हम यहाँ पर एप्पल के बाद आएगा, ऑरेंज के बाद आएगा। ठीक है, देयर आर मैनी कार्स, बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड, कार्स के बाद आएगा बस। देयर आर चेयर्स, अ टेबल, अ कबर्ड एंड अ टेलीविजन इन दिस रूम, चेयर्स के बाद आएगा, टेबल के बाद आएगा और बस।
इस तरीके से हमने इन पंक्चुएशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे, विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिलेबल्स। डिक्शनरी की मदद से इन सिलेबल्स को अल्फाज में तकसीम करना है कि हम एक अल्फाज को कितने हिस्सों में बोलते हैं। ठीक है, पीपल, इसको हम कितने हिस्सों में बोलते हैं बेटा? 2 हिस्सों में, PEO और फिर PLE। ठीक है, 2 हिस्सों में बन रहा है ये। गार्बेज, गारबेज, 2 हिस्सों में बोल रहे हैं इसको। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ठीक है, इसको भी 2 हिस्सों में बोल रहे हैं। एक्सट्रीमली, एक्स है फिर ट्री है और फिर मली है, एक्सट्रीमली, इसको हम 3 हिस्सों में बोल रहे हैं, 3 सिलेबल्स बोलेंगे इसको। प्लैनेट, प्लैनेट, इसको हम 2 पार्ट्स में बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा ग्लोसरी, सिगरेट बर्ड्स। ग्लोसरी के अंदर हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स को देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या मतलब दे रही है, उसके हम इंग्लिश के अंदर जो है या उर्दू के अंदर उनके मीनिंग्स जो हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट वन है बेटा सिगरेट बर्ड्स, इस्तेमाल शुदा सिगरेट के टुकड़े। द अनयूज्ड एंड्स ऑफ फिनिश्ड सिगरेट और सिगार एक्सेट्रा कैन अ कंटेनर मेड ऑफ मेटल और अदर मटेरियल। ठीक है, इसको हम डब्बा भी कह सकते हैं। कंसिक्वेंसेस होते हैं नताइज, रिजल्ट ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। डिस्पोज ऑफ यानी कि तल्फ कर देना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग फिनिश। एमिट मतलब कि एमिट होता है ख़त्म कर देना। सेंड आउट, इन्वायरमेंट माहौल, द सराउंडिंग और कंडीशन विद इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट। गार्बेज मीन्स डोमेस्टिक वेस्ट। गिल्टी मुजरिम या कसूरवार, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। इम्पैक्ट असर, अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इम्प्रेशन। लैक कमी, टू बी विदाउट और टू हैव टू लिटल ऑफ समथिंग। लिटरिंग वेस्ट पेपर और आइटम्स ऑफ रबिश। मैस, मैस होता है गंदी हालत। एन अनटाइडी और डर्टी स्टेट। रबिश मतलब वेस्ट मटेरियल या कूड़ा करकट भी हम इसको कहेंगे। स्कैटर्ड बिखरा हुआ। थ्रोन अराउंड लूजली। साइड वॉक्स मतलब फुटपाथ भी हम इसको कहेंगे, मीन्स पेवमेंट। टेरिबल खौफनाक। कॉजिंग ग्रेट फेयर। ट्रैश ज़ायशुदा चीज़ें या कूड़ा करकट। वेस्ट मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स। अनटाइडी गंदा मीन्स डर्टी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर और टॉपिक। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमने इसके अंदर जितनी भी ग्रामर की चीज़ें की हैं, जितने भी हमने इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर याद हो सके। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।